we are going to start numerical problems from book of Rati. Okay, so first three questions are solved here on the board. I'll explain how they have been solved. Okay, the first question is what? So in the first question we are given the information there are two partners, Amresh and Kamlesh. Okay, at the beginning of the year their capitals are 2,80,000 and 2,20,000. Right? On 1st of September they decided their capital should be equal 2,50,000 each. Okay, now we have to calculate interest on capital at the rate 6% per annum. Okay, so what is the formula for calculating interest? Formula for calculation of interest is P into R into T upon 100. P for principal, R for rate and T for time. Okay, तो प्रिंसिपल में मतलब जिस अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है दैट इज द अमाउंट प्रिंसिपल. रेट दैट इज गिवन इन क्वेश्चन एट द रेट 6% पर एनम, और टाइम जितने टाइम के लिए जो कैपिटल वहां पे इंट्रोड्यूस की गई है उतने टाइम पीरियड के लिए आपको कैलकुलेशंस करने हैं. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, एट द बिगिनिंग देयर कैपिटल्स आर 2,80,000 एंड 2,20,000 ईच. राइट? And from 1st September their capital is being changed. तो आपको यहाँ पे 2,80,000 और 2,20,000 जो अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट उस पर आपको कैलकुलेट करना है फ्रॉम जनवरी टू अगस्त. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम जनवरी टू अगस्त ऑन 2,80,000. दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट. ओके, द रेट इज 6%, 6 by 100 एंड पीरियड इज जनवरी टू अगस्त आपको कैलकुलेट करना है दैट इज 8 months. तो 8 by 12 and amount calculated is 11,200 on the same basis for the same period. ठीक है, but on the different amount that is 2,20,000 we have to calculate interest on capital for Kamlesh. So here the principal amount of Kamlesh for 8 months is 2,20,000, rate of interest 6%. And period is 8 by 12, 8 months के लिए, and amount is 8,800. Now, from the 1st September, the capital is changed. Okay, each partner's capital is now 2,50,000 each. So 2,50,000 it becomes the principal amount for the further period. Okay, so 2,50,000 at the rate 6% and time period is 4 months. एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं, 8 महीने वहां चले गए, 4 महीने यहां पे बचते हैं. ओके, इंटरेस्ट इज 5,000 एंड अगेन कमलेश कैपिटल इज ऑल्सो 2,50,000 फॉर द सेम पीरियड फॉर द सेम रेट. तो कैपिटल इंटरेस्ट इज 5,000. नाउ द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर अमरेश इज 16,200 and for Kamlesh is 13,800. This is the first question of your book, that is Rati, MG Rati. Okay, now the second question is, here there are two partners again, Sheila and Leela. Right? At the beginning their capital was 4 lakh and 3 lakh. During the year their capital is continuously changing. Okay, so we have to calculate interest on particular amount for particular period. Formula again वही आएगा, principal into rate upon 100 into time. Okay, so from January to April because the capital is changing from May. ठीक है, तो आपको 1st जनवरी से लेके और 30th अप्रैल तक का जो इंटरेस्ट है वो अलग अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसके बाद अमाउंट चेंज होगी तो रिमेनिंग पीरियड के लिए आपको अलग अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, तो 4 lakh जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल देयर आर 4 months. तो ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है आपका टाइम पीरियड जितने के लिए ये कैपिटल उस बिजनेस में रही. ओके, अमाउंट इज 8,000. लीला's कैपिटल was 3 lakh for the same period. 3 lakh into 6% into 4 by 12 months. Amount is 6,000. Now the capital is changing. Okay, so from 1st May to अक्टूबर में अगेन कैपिटल चेंज हो रही है. तो इस नवंबर से कैपिटल फिर से चेंज हो रही है. तो अप टू अक्टूबर जो है वो कैपिटल अमाउंट फिक्स हो गई है, दैट इज 4,50,000. He has introduced further 50,000. So 4,50,000 is now capital for the next how many months?
6 months. Okay, तो 4,50,000 into 6 by 100 into 6 by 12, 6 months के लिए 6 by 12. टोटल अमाउंट इज 13,500 जो हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है. Here he has introduced 40,000, so capital becomes 3,40,000 now for the next 6 months up to the October. 3,40,000 into 6 by 100 and into 6 by 12. Amount is 10,200. Now what happened? There is no change in capital of Sheila, but there is change in capital of Leela. Okay, तो शीला की कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, तो अगेन सेम अमाउंट के ऊपर हम रिमेनिंग पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे. 4,50,000 into 6 by 100 into 2 by 12 और अमाउंट आ रहा है 4,500. In this case, Sheila has withdrawn 12,000 rupees. So capital will decrease. So 3,40,000 से कैपिटल डिक्रीज होकर कितनी हो गई है? 3,28,000 for the next 2 months. ठीक है, तो 3,28,000 into 6% into 2 by 12 अमाउंट इज 3,280. अब यहां पर बेसिकली इसकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया है, तो हम इस वाले कैलकुलेशन को इसी के साथ में मर्ज कर सकते हैं. यहां पे जो 2 महीने का कैलकुलेशन अलग किया गया है, उसकी जगह हम यहां पर 8 महीने का डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, तो भी हमारा फिगर वही आएगा. चूंकि मैंने इसके साथ में कोरिलेट करने के लिए प्रेजेंटेशन इस तरीके से बना दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज करेक्ट. एंड इफ यू कैलकुलेट इन दिस वे कि यहां पे आप 6 मंथ्स की जगह डायरेक्टली 8 मंथ्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं ऑन 4,50,000. There is no difference. Okay. Now the total interest on capital is 26,000 for Sheila and 19,480 for Leah. Okay. Now the third question is what? Third question जो है remember कि interest on capital is calculated only at the कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. मीन्स ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग. ओके, उसके बाद अगर कोई कैपिटल में चेंज आता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग फिर कैपिटल को चेंज करके आपको कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, जैसा हमने यहाँ पे किया हुआ है. बट इन अवर दिस क्वेश्चन वी हैव नॉट गिवन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल. ठीक है, तो देयरफॉर फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, देन वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्वेश्चन के जो कंटेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं. क्वेश्चन के जो कंटेंट्स हैं वो है इनकी क्लोजिंग कैपिटल आपको देने की 2 लाख एंड 1,50,000. ड्यूरिंग द ईयर दे हैव मेड सर्टेन ड्राइंग्स एंड देयर प्रॉफिट्स आर आल्सो. ठीक है, तो जब आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो आपका प्रोसेस किस तरीके से होगा वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल. दे आर गिवन टू यू इन क्वेश्चन. वो हमने यहाँ पे लिख दी है तीनों के. ओके, देयर आर 3 पार्टनर्स, तो हमने तीनों के लिए लिखा. उसके बाद एड ड्राइंग्स. ड्यूरिंग द जो भी ड्राइंग किए गए हैं दे हैव टू बी एडेड बैक. वो आप कैपिटल में ऐड कर देंगे. ओके, तो कैपिटल ड्राइंग्स आर गिवन सेपरेटली फॉर ईच पार्टनर. दे हैव बीन एडेड. ओके, नाउ द टोटल इज, जो टोटल लगा हुआ है यहाँ पे वो टोटल आ जाएगा. उसके बाद अब आपको इसमें से माइनस करना होता है profit which we have added to the capital. Profit is 75,000 and we are not given any ratio for the distribution of profit. Okay, so you have to remember in the absence of any information in respect of profit sharing ratio, profit is divided equally. Okay, not in capital ratio. Okay, profit is to be divided equally. Therefore, 75,000 have been divided equally in 3 partners, that is 25,000, 25,000 and 25,000. तो यहाँ पे 25,000, 25,000, 25,000 ईच, ये हमने उसकी कैपिटल में से माइनस किया. नाउ वट एवर बैलेंस वी फाइंड दैट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल. तो यहां पर ओपनिंग कैपिटल बैलेंस ऑफ आ रहा है 1,85,000, 1,32,500 and 80,000. Okay, and there is no additional capital during the year or no withdrawal of the capital according to question. Okay. So now we have to calculate interest on capital on these amounts. So here in case of A, capital is 1,85,000, the rate of interest is 10% and the period is whole year. Whole year के लिए आपको period लगाने की जरूरत
नहीं होती है, बिकॉज अगर आप टाइम पीरियड यहाँ पे डालेंगे तो दैट वुड बी 12/12, दैट इज 1। तो यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो 1,85,000 into 10/100, interest on capital is 18,500. Then in case of B, 1,32,500. Okay, 10% is 10/100. Interest on capital is 13,250. In case of C, capital is 80,000. 80,000 का 10% आप कैलकुलेट करेंगे, that would be 8,000. इस तरीके से आपके इन तीनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आएंगे। तो रिमेंबर, जो चीजें आपको याद रखनी है, दैट इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है दैट इज P इंटू R इंटू टी। ओके, टाइम पीरियड में आपको टाइम लेना है, जितने टाइम के लिए जितनी कैपिटल बिजनेस में यूज की गई है, पुट की गई है, उस पर आपको कैलकुलेशन उतने टाइम पीरियड के लिए करना है। जैसा कि अगर आपकी कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर चेंज होती है तो आपकी फ्रॉम द बिगिनिंग टू पर्टिकुलर पीरियड तक कितनी थी उस पर आप अलग कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद जो रिमेनिंग पीरियड है उसमें कैपिटल का अमाउंट क्या हो गया है उसके ऊपर आप अलग से कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमने यहां पर भी अप्लाई किया है और इसमें भी अप्लाई किया है। ओके, अगली चीज जो है वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी कैलकुलेटेड और ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड और ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन opening balance of capital. If you are not given opening balance of capital in the question, instead of that you are given closing balances, then first you have to find out opening balance of capital. How do you find out opening capital balance? This is the format. First of all you have to write closing balances. After that you have to add during the year जो भी ड्रॉइंग्स दिए गए हैं वो आपको ऐड करने हैं। ओके, ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है उस प्रॉफिट को आपको कैपिटल में से माइनस करना है। देन यू कम टू नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इन जनरल। ठीक है, देयर मे बी सम अदर एडजस्टमेंट्स आल्सो, बट इन दिस क्वेश्चन और इन दिस चैप्टर देयर इज नो मोर एडजस्टमेंट्स। कुछ एडजस्टमेंट्स और भी हो सकते हैं लेकिन यहां पर नहीं है, इसलिए नहीं किए गए हैं। इन जनरल आपको ये 3 एडजस्टमेंट ही करने होते हैं। क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन होती है, ड्रॉइंग्स आपको गिवन होते हैं, प्रॉफिट्स आपको गिवन होते हैं, उन्हीं को आपको प्लस माइनस करना है। तो आप निकल के आ जाते हैं ओपनिंग कैपिटल बैलेंस के ऊपर। उसके बाद आप उसके ऊपर P इंटू R इंटू टी इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एंड यू कम टू नो द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, अगले जो 2 क्वेश्चन हैं दे आर कनेक्टेड विद द IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के ऊपर है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में मैंने आपको कई सारे अलग अलग मेथड्स बताए थे। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला जिसमें आप सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, दूसरा आपको सिखाया था उसमें प्रोडक्ट मेथड होती है, और तीसरा आपको सिखाया था एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाने के ऊपर। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड को आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला को भी आप किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन में ही अप्लाई किया जा सकता है। उसके लिए 2 कंडीशन आपको चेक करनी होती है। एक तो ये कि अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग जो भी होगा जब भी निकाला जाएगा एक फिक्स अमाउंट होगा और हर बार वही अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा। दूसरा ये कि 2 ड्रॉइंग्स के बीच में जो टाइम गैप होगा वही टाइम गैप आपको हर ड्रॉइंग के बीच में मिलेगा। ठीक है, जैसे हर महीने में आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉल में भी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ या फिर एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अगर आप बिगिनिंग से बिगिनिंग में कैलकुलेट करेंगे तो भी 1 महीने का गैप आएगा, एंड से एंड को कैलकुलेट करेंगे तो भी 1 महीने का ही गैप आएगा, और मिडिल ऑफ द मंथ में भी हो सकता है। तो मिडिल से मिडिल मंथ अगर आप कैलकुलेट करते हैं अगेन गैप 1 महीने का ही आएगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर से क्वार्टर का अगर आप गैप लेंगे तो 3 महीने का गैप आपको हर ड्रॉइंग के बीच में मिलेगा, या फिर एंड ऑफ द क्वार्टर, तो यहां पर भी आपको क्वार्टर के एंड से अगले क्वार्टर के एंड पर जब जाएंगे तो 3 महीने का गैप मिलेगा। तो इस तरीके से जहां पे एक फिक्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग होता है और एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल होता है ड्राइंग के बीच में, तब आप कैलकुलेट करते हैं एवरेज पीरियड का फॉर्मूला। अदरवाइज आप या तो प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे या फिर यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड लिटिल बिट लेंथी हो जाती है बिकॉज ऑफ यू हैव टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला फॉर ईच एंड इंडिविजुअल ड्राइंग। ठीक है, तो कैलकुलेशंस आपके थोड़े से बढ़ जाते हैं। ओके, प्रोडक्ट मेथड में आपके कैलकुलेशंस थोड़े से छोटे कम हो जाते हैं कंपैरेटिवली। आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला एक ही बार लगाना है, बाकी बार आपको सिर्फ प्रोडक्ट निकालना और प्रोडक्ट का टोटल करना होता है। फॉर्मूले में आपको ऑलरेडी दे चुका हूं,
अब जो क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा उसमें वही चीज मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा। हियर द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। They are in respect of interest on drawings. First question is there are two partners A and B, whatever may be the name of partners. ठीक है, one of the partner had withdrawn rupees 2000 consistently at a fixed interval. तीन केसेस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। When the amount is withdrawn at the beginning of the month, when the amount is withdrawn at the end of the month, and when the amount is withdrawn at the middle of the month. Okay, तो यहाँ पे चूंकि अमाउंट कंसिस्टेंट है और टाइम इंटरवल भी फिक्स है, ठीक है, कि एवरी मंथ दे आर विड्रॉइंग वेदर इट इज बिगिनिंग ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ और मिडिल ऑफ द मंथ। देयरफॉर आई हैव यूज्ड हियर द फॉर्मूला ऑफ एवरेज टाइम पीरियड। द फॉर्मूला इज टोटल अमाउंट ड्रॉन, जो भी अमाउंट आपने टोटल पीरियड में ड्रॉ किया है, इनटू रेट जो भी होगा आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, एंड एवरेज टाइम डिवाइडेड बाय 12। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, according to formula 2000 rupees per month had withdrawn, right? The 2000 how many months? 12 months. The 2000 into 12 is equal to 24,000। ये आपका टोटल साल भर का ड्रॉइंग हुआ। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन क्वेश्चन 10%, तो हमने अप्लाई किया 10 by 100। नाउ वी आर कमिंग टू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड यहाँ पे जो कैलकुलेट होके आ रहा है वो आ रहा है 6.5 मंथ्स के लिए, तो 6.5 डिवाइडेड बाय 12। एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ के केस में ऐसे ही आता है। कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है ये मैं अभी आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। उसके बाद अगर हम आते हैं सेकंड केस में जिसमें आपने पैसा विड्रॉ किया है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, राइट? तो अगेन टोटल अमाउंट इज 24,000, नो प्रॉब्लम। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10 by 100, एंड हियर द एवरेज पीरियड इज 5.5 मंथ्स, तो 5.5 डिवाइडेड बाय 12, एंड लास्ट केस इज एट द मिडिल ऑफ मंथ, जो पैसा आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो 2000 into 12 is equal to 24,000 withdrawn for the whole year. Rate of interest is 10%, which is given in question, and here the time period is 6 months, तो 6 by 12। अब एवरेज टाइम को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको इसको बताया था कि आपको जो सबसे पहला पैसा विड्रॉ किया है, ठीक है, उस दिन से लेके ईयर एंड तक का जो टाइम पीरियड है उसको कैलकुलेट करना है। तो अगर आप बिगिनिंग ऑफ मंथ की बात करते हैं और आपका अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है 1 जनवरी और एंड होता है 31 ऑफ दिसंबर, ठीक है, तो आपने जो सबसे पहला पैसा विड्रॉ किया, चूंकि बिगिनिंग ऑफ मंथ है तो आप 1 जनवरी को पैसा विड्रॉ करेंगे, दैट इज फॉर 12 मंथ्स, राइट? उसके बाद इसमें आपको ऐड करना है जो लास्ट पैसा आपने विड्रॉ किया है वो कितने टाइम के लिए विड्रॉ हुआ है, तो वो लास्ट ड्रॉइंग टू ईयर एंड, ठीक है। लास्ट मंथ में जो ड्रॉइंग होगी, लास्ट मंथ इज दिसंबर, और दिसंबर के बिगिनिंग में, चूंकि आप बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो होगा 1 मंथ, फ्रॉम 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर, दैट इज 1 मंथ। तो 12 प्लस 1 दोनों को ऐड किया, कितना हो गया? 13। नाउ इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 2, तो 13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ्स। ओके, तो यहां पर जो पीरियड आ रहा है वो 6.5 मंथ्स आ रहा है। अब मैं आता हूं सेकेंड वाले केस में, where the time period, average time period is 5.5 months. How it is calculated? Here we are drawing the amount at the end of every month. ठीक है, तो फर्स्ट अमाउंट विल बी विड्रॉन एट द एंड ऑफ जनवरी, से 31 जनवरी, ठीक है। तो जनवरी आपका खत्म हो चुका है, अब कैलकुलेशन जो होगा जनवरी ऑनवर्ड से लेकर दिसंबर तक होगा, तो देयर आर 11 मंथ्स। ओके, अब लास्ट में जो पैसा आप विड्रॉ करेंगे दैट इज एट द एंड ऑफ मंथ, मीन्स दिसंबर आपका लास्ट मंथ है और उस मंथ के एंड में आपने पैसा विड्रॉ किया है, तो 31 दिसंबर को अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो 31 टू 31 मीन्स सेम डे के बिगिनिंग में, मतलब एंड में आप पैसा विड्रॉ करें, उसी दिन आपका वो मंथ खत्म हो जाता है, तो 0 हो गया। तो 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 5.5 मंथ्स। ओके, अब मैं आता हूं यहां पे मिडिल ऑफ द मंथ में, तो आप हर महीने की 15th ऑफ एवरी मंथ यू विड्रॉ द मनी, तो फर्स्ट विड्रॉल विल बी मेड ऑन 15th ऑफ जनवरी, तो 15th जनवरी से लेके आगे का पीरियड दिसंबर 31 तक आपको काउंट करना है, देयर आर 11.5 मंथ्स,
ठीक है। आफ्टर दैट लास्ट ड्रॉइंग जो आपको करनी है वो 15th ऑफ दिसंबर को करनी है। तो फ्रॉम 15th दिसंबर टू 31st दिसंबर देयर इज हाफ मंथ। तो 11.5 मतलब 11.5 मंथ प्लस हाफ मंथ, दैट इज 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज पीरियड कितना आता है? 6 मंथ्स आता है। ओके, तो यहां पे ये 6/12 है। इस तरीके से कैलकुलेशंस किए गए हैं। अब सेम चीज जो है वो क्वार्टर में भी हो सकती है। क्वार्टर जो होते हैं साल में 4 होते हैं और हर क्वार्टर के बीच में, 2 क्वार्टर के बीच में जो टाइम गैप होता है वो 3 महीने का होता है। ओके, अब सपोज करें कि अगर आप साल में हर क्वार्टर में पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो आप साल में कितनी बार पैसा विड्रॉ करेंगे? 4 टाइम्स। तो जितना भी अमाउंट पर क्वार्टर विड्रॉ किया जाएगा उसको नंबर ऑफ क्वार्टर्स 4 से पहले मल्टीप्लाई करना है, ये आपकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। ओके, अब उसके बाद फिर आपको एवरेज पीरियड देखना है। तो एवरेज पीरियड में अगर आप बिगनिंग ऑफ क्वार्टर में करते हैं तो जो आपका बिगनिंग ऑफ क्वार्टर होता है वही आपका बिगनिंग ऑफ द ईयर भी होता है। मतलब ईयर के स्टार्टिंग में आपने सबसे पहले पैसा विड्रॉ किया तो वो पैसा आपका 12 मंथ्स के लिए विड्रॉ हुआ। फिर आपका जो लास्ट क्वार्टर होता है, लास्ट क्वार्टर 3 महीने का होता है। मतलब ये कि लास्ट क्वार्टर में जो 3 महीने होते हैं उसमें जो पहला महीना होता है उसमें आप पैसा विड्रॉ करेंगे तो वो पैसा कितने महीने के लिए होगा? 3 महीने के लिए। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि ये आपके कैलकुलेशंस कैसे हैं। ठीक है, आपने पैसे आपके जो जनवरी टू मार्च ये आपका पहला क्वार्टर हो गया, अप्रैल टू जून ये आपका सेकेंड क्वार्टर, जुलाई टू सितंबर ये आपका तीसरा क्वार्टर और अक्टूबर टू दिसंबर ये आपका फोर्थ क्वार्टर। अब अगर आप बिगनिंग ऑफ क्वार्टर में पैसा विड्रॉ करते हैं तो आप जनवरी में विड्रॉ करेंगे, आफ्टर दैट आप अप्रैल में विड्रॉ करेंगे, फिर आप जुलाई में विड्रॉ करेंगे एंड लास्ट मनी जो विड्रॉ करेंगे वो अक्टूबर में होगी। तो जब आप जनवरी से आप विड्रॉ करते हैं, जनवरी टू दिसंबर कितने महीने हो जाते हैं? 12 मंथ्स। और लास्ट क्वार्टर में जब आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 3 महीने। टोटल हो गए 15 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज पीरियड कितना आएगा? 7.5 आएगा। ओके, अब सेम चीज अगर मैं अप्लाई करता हूं कि मैं एट द एंड ऑफ द क्वार्टर पैसा विड्रॉ कर रहा हूं, मतलब मेरे क्वार्टर का जब एंड होगा तब मैं उस पैसे को विड्रॉ करूंगा। ओके, तो मेरा जो फर्स्ट विड्रॉल होगा वो 31st ऑफ मार्च को होगा। तो ये पीरियड तो मेरा एक्सपायर हो चुका है। अब मेरा जो इसके आगे का पीरियड है वो है ये। तो ये हो जाते हैं अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 मंथ्स। ओके, उसके बाद मैं अपने लास्ट क्वार्टर के एंड में पैसा विड्रॉ करूंगा, मतलब 31st ऑफ दिसंबर को। तो 31st ऑफ दिसंबर को जब पैसा विड्रॉ करूंगा तो उसमें मेरा जो टाइम पीरियड रहेगा दिसंबर टू दिसंबर, दैट वुड बी 0 divided by 2 is equal to 4.5 months. ओके, तो इस तरीके से अगर आप एट द एंड ऑफ क्वार्टर पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपका टोटल टाइम पीरियड होता है 4.5 मंथ्स। तो टोटल अमाउंट के ऊपर आपको 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना होता है। और यही चीज अगर आप मिडिल ऑफ क्वार्टर में करते हैं तो वहां पे 6 महीने निकल के आएगा आपका एवरेज पीरियड। आप उसको कैलकुलेट करके देखें, कोशिश करें। नहीं समझ में आएगी तो आप मुझसे कभी भी फोन लगा के पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ अब मैं आता हूं मेरे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जहां पे एक अनइवन अमाउंट मतलब अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किए गए हैं और अलग अलग टाइम इंटरवल्स पर विड्रॉ किए गए हैं। तो यहां पर मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड जिसमें मैं हर इंडिविजुअल ड्रॉइंग के ऊपर उसके पीरियड के लिए अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं। दूसरा तरीका हो सकता है प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड इज इजियर देन डायरेक्ट मेथड, क्योंकि वो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। ओके, तो इसका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से आपको बनाना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो कॉलम होगा वो होगा डेट ऑफ ड्रॉइंग का, सेकंड कॉलम होगा आपका अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग का, थर्ड कॉलम होगा टाइम पीरियड का और चौथा कॉलम जो होगा वो आपका होगा प्रोडक्ट का। ठीक है, जो टाइम पीरियड का जो कॉलम है उसमें आपको टाइम का कैलकुलेशन कैसे करना है, जिस डेट में भी आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं वहां से लेके आपको ईयर एंड तक के टाइम को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये और ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्रोडक्ट बन के आएंगी। उसके बाद आपको प्रोडक्ट के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, टोटल प्रोडक्ट
into rate upon 100 into 1/12. ओके, 1/12 तब करते हैं जब आपने टाइम पीरियड मंथ्स में निकाला। अगर ये टाइम पीरियड डेज में निकल रहा है तो यहाँ पे 1/12 की जगह आपको यूज करना है 1/365। साल में 365 दिन होते हैं, तो आपको एक दिन का इंटरेस्ट निकालना होता है, इसलिए आप करते हैं यहाँ पे 1/365। नाउ द क्वेश्चन जो यहाँ पे था उसके अकॉर्डिंग पहला जो ड्रॉइंग किया गया दैट इज ऑन 1st of February 12,000 rupees, सेकेंड ऑन 30th April 6,000, ऑन 30th June 9,000, ऑन 31st of August 12,000, on 1st of October 8,000, and on 31st December 7,000. Now I am going to calculate period from on 1st February, तो सॉरी 1st February, तो 1st February को जब आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो 1st February से लेके 31st December तक आपको कैलकुलेट करने देर आर 11 मंथ्स। जनवरी खत्म हो चुका है, फरवरी 1 को आपने पैसा विड्रॉ किया, दैट विल बी काउंटेड, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 11 मंथ्स। नाउ फ्रॉम 30th April, अप्रैल इज एंड, अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको काउंट करना है, तो मई से आपकी काउंटिंग शुरू होगी, मई से लेकर दिसंबर तक होते हैं 8 महीने, आपने यहाँ पे लिखे 8 मंथ्स। देन 30th June, जून ऑनवर्ड्स आपको कैलकुलेट करना है, मतलब जून तक खत्म हो चुका है, जुलाई से कैलकुलेशन शुरू होगा, 6 मंथ्स आएंगे। देन 31st of August, अगस्त इज ओवर, तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 महीने आपके आएंगे, यहाँ पे आपने लिखा 4। देन 1st of October, 1st October मीन्स अक्टूबर इज टू बी काउंटेड, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने आएंगे यहाँ पे, ये आपने लिखा 3, और ये 31st दिसंबर, तो 31st December to 31st December there is 0 period. Okay, now we multiply this to 1,32,000, this into this 48,000, 9 into 6 54,000, 12 into 4 48,000, 8 into 3 24,000, 7 into 0 is equal to 0. Okay, ये आप सब चेक कर लेंगे घर में। उसके बाद you have to make the total, that is 3,06,000. टोटल आपका प्रोडक्ट आ रहा है 3,06,000. Now we apply the formula 3,06,000 into rate is 9% upon 100, तो 9 upon 100 यहाँ पे करेंगे and into 1/12, that is in formula। एक महीने के लिए आपको कैलकुलेट करना है, क्यों? क्योंकि आपने जो टाइम पीरियड निकाला है दैट इज इन मंथ्स। अगर ये डेज में होता तो आप यहाँ पे 1/12 की जगह कितना लिखते? 1/365। ओके, एंड हमने इसको कैंसिल किया, जो भी तरीका है आपका काटने पीटने का वो आप करते हैं, उसके बाद जो कैलकुलेशंस आते हैं फाइनली दे आर 2295। तो ये है आपका प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे तो ये ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को देखने के बाद यू हैव टू अप्लाई योर माइंड कि वहां पर आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि आपके कैलकुलेशंस इजी गोइंग हो, इजीली आप उसको सॉल्व कर पाए और टाइम्स कम से कम आपका कंज्यूम हो, ठीक है। तो इट इज टू बी डिसाइडेड बाय यू, नॉट बाय मी। तो आप क्वेश्चन पढ़ें, समझें और जानें कि कहां आपको कौन से सिस्टम को अप्लाई करना चाहिए और कौन से मेथड को वहां पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल। अब हम अगले लेक्चर में अगली चीजें पढ़ेंगे।